First law of refraction I already taught you. First law and second law, statement of second law also I told you that if there is a rarer medium, if there is a denser medium, or if there is difference in the optical density, if there is difference between the optical density of the two mediums. Optical density means one is optically denser, one is optically rarer. So when light travels from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. It bends what? Towards the normal. When optically denser medium से optically rarer medium में जाता है, it bends what? Towards the normal. So from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. And we say that the angle I created, which is the angle of incidence, which is between the incident ray and the normal, and the angle R created, which is the refracted ray, which is the refracted angle of refraction created between the refracted ray RR and the normal. Now we say for a given pair of media, the sine of angle of I, sine I by sine R is always equals to constant. What do they mean by this statement? You know that the sine I by sine R is equals to constant for a given pair of media. What do they mean by that? You know, they just mean by that a simple thing, that for a given pair of media, meaning the second law states that for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equals to a constant. Is this clear to you? Now the meaning of this is always equals to constant. Now the meaning of this is that for a given pair of media, now if anyone wants to understand the mathematical meaning of this, that is very easy. That sir, ये एंगल I है sin I by sin R, sin तो सीख ही चुके हो क्या साइन है, sin I by sin R is equals to constant. जब भी रिफ्रैक्शन होगा sin I by sin R is equals to constant. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर सोचिए कि ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, ये एयर है, ये वाटर है, या फिर हाँ ये एयर है, ये वैक्यूम है, तो एयर ज़्यादा डेंस होता है वैक्यूम से, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और शायद वो दूसरा एंगल में भी गिर सकता है ऐसे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. तो यहाँ पे जो I1 क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो R1 क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो I2 क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो R2 क्रिएट हुआ है, तो साइन I1 by sin R1 is always equals to sin I2 divided by sin R2. इसका मतलब ये हुआ कि ये करने से जो वैल्यू आएगा, सोचो जो भी आएगा, k वैल्यू आएगा, ये भी करने से k वैल्यू आएगा. मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस एंड एंगल ऑफ refractions. Even in denser medium, it is denser to rarer medium I have given. Even from rarer to denser medium also, the same thing is true. If it falls at any other angle, you can show here also that it is falling at any other angle. If it falls at any other angle, the extent of bending, this is suppose another I, this is suppose another R. So this I by this R, the blue I by the blue R, and the green I by the green R, sin I by sin R is always equals to sin I by sin R. Means for different angle of incidences, the sin of I divided by the sin of R is always equals to constant. मतलब कभी चेंज नहीं होगा. ये मतलब बनता है, समझ में आया? लेकिन इससे भी और एक अच्छा मतलब बनता है कि for a given pair of media, the extent of refraction, ये है असली मतलब, is constant. For a given pair of media, the extent of refraction is constant. Message kore disish, okay? For a given pair of media, the extent of refraction is constant. Constant extent of refraction होता है. Is this clear to you or not clear to you? Sir, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि the extent of refraction is constant? मतलब जितना रिफ्रैक्शन होना है उतना ही होगा. रिफ्रैक्शन क्यों होता है? स्पीड ज़्यादा होने के लिए या कम होने के लिए? जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आता है तो स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है, इसीलिए बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब डेंसर टू रेयर मीडियम आता है तो स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है, इसीलिए इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और ऐसा क्यों होता है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत दिन पहले सिखा दिया था. वो अगर भूल गए हो तो दिया हुआ है, वीडियोस लिख के भी तो दिया था ना तो मैंने तुम लोगों को कि ये है, तो वीडियोस में लिख लेना. इज दिस क्लियर टू यू?
इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस नॉट अंडरस्टूड? तो स्पीड बढ़ने के लिए या घटने के लिए रेस्पेक्टिवली क्या हो रहा है कि द आई एंड आर, द एंगल बिटवीन आई एंड आर, सॉरी, स्पीड बढ़ने के लिए या घटने के लिए द रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है लाइट का, एंड साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर अलग अलग एंगल में फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट होगा। सर इसका और इसका कंपेयर करेगा तब नहीं होगा, ये तो डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया है, ये तो डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया है। एक पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया में जितना भी रिफ्रैक्शन, तो एक लाइन से तो थोड़ी ना हो रहा है, एक रे से थोड़ी ना हो रहा है, बहुत सारा रेज अलग अलग एंगल में गिर रहा है, राइट और रॉन्ग, और अलग अलग एंगल में बेंड हो रहा है। तो बेंडिंग का जो एक्सटेंट है, जितना स्पीड, देख अलग अलग एंगल में गिरेगा तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, राइट, अलग अलग एंगल में बेंड हो रहा है क्योंकि अलग अलग एंगल में गिरा है। लेकिन इस एंगल के हिसाब से कितना बेंड हुआ है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैं अगर औरित्रो को 2 रोटी दूं तो 10 किलोमीटर दौड़ेगा, औरित्रो को 4 रोटी दूं तो 20 किलोमीटर दौड़ेगा, अगर औरित्रो को 8 रोटी दूं तो 40 किलोमीटर दौड़ेगा। ठीक उसी तरह मैं अगर रेहान को 2 रोटी दूं, ठीक है, वो 2 मीटर दौड़ेगा, 4 रोटी दूं तो 4 मीटर दौड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ औरित्रो। देख दोनों को 2-2 रोटी दे रहा हूं, 2-2 करके बढ़ा रहा हूं, औरित्रो का भी इक्वली बढ़ रहा है, रेहान का भी इक्वली बढ़ रहा है, यस और नो? लेकिन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ रेहान एंड औरित्रो, जो वो कितना रिजल्ट दे रहा है, ये 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर रिजल्ट दे रहा है, ये 2 मीटर 4 मीटर रिजल्ट दे रहा है। ठीक उसी तरह अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया में द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग विल बी अलग अलग, राइट और रॉन्ग? बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे ऑरित्रो के लिए कांस्टेंट है, इन द सेम वे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कितना बेंडिंग होगा वो कांस्टेंट रहता है, जितना भी एंगल में गिरे द अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल बी कांस्टेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एंगल ऑफ आई और आर वेरी कर जाने से भी साइन आई बाई साइन आर करने से कांस्टेंट आता है। एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? Am I being able to make myself clear? Sin I by sin R करने से constant आता है। Is this understood? Is this not understood? So for a given pair of media, the sine of angle of incidence, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant quantity. It will never vary for a given pair of media. And in that media, whichever angle the incident ray is falling, whichever angle the refracted ray is creating, whatever is the angle of incidence, what is the angle is the angle of refraction, the ratio of that will remain constant, because the extent of how much speed is decreasing or how much speed is increasing, that extent of refraction is to constant रे बाबा। 2 given pair of media, for that 2 जब सपोज वाटर से ग्लास में आता है, या फिर ऑयल से ग्लास वाटर में आ रहा है, या फिर एयर से डायमंड में जा रहा है, या फिर डायमंड से एयर में जा रहा है, जो भी हो वो मीडिया तो कांस्टेंट है ना। तो अलग अलग एंगल में लाइट निकल सकता है, अलग अलग एंगल में रिफ्रैक्शन एंगल में लाइट बेंड होकर निकल सकता है, लेकिन कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन का अमाउंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वही चीज इससे समझा है कि भाई तो अलग अलग एंगल में फेंक के देख, रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल में होगा, लेकिन द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन वही होगा, क्योंकि स्पीड जितना घटना है उतना ही घटेगा, क्योंकि लाइट का स्पीड एक पर्टिकुलर मीडियम में एक पर्टिकुलर ही होता है, मीडियम चेंज होने से चेंज होता है, जितना घटना है उतना ही घटेगा। इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? श्योर? तो ये सेकेंड लॉ का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है, कोई प्रॉब्लम की बात है? यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली करेक्ट? और एक चीज दिखा देता हूं, देख लो, बुक सुक में ये सब तो लिखता नहीं है, ये थोड़ा सा खुद का सोच भी है, ठीक है, ऐसे एक्चुअली पढ़ाना उचित नहीं है, लेकिन देखो उचित है कि नहीं उचित है, तुम लोग ही डिसाइड करो। ऐसे गिरा, ऐसे गया, सेम पेयर ऑफ मीडिया रिपीट कर रहा है, ऐसे गिरा, ऐसे गया, ये I1 है, ये I2 है, ये R2 है, ये सॉरी ये R1 है, ये R2 है। तो मैं अगर लिखूंगा साइन I1 बाई साइन R1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं खींच दूँ, यहाँ पे अगर खींच दूँ तो दिस इज I1, सो इफ दिस इज 90, इफ दिस इज 90, सो साइन इज परपेंडिकुलर, राइट और रॉन्ग, बाई हाइपोटेन्यूस,
divided by sin r1 is perpendicular by hypotenuse. अच्छा, ये हाइपोटेनियस का जो ये है वो अगर मैं सेम भी समझता हूं तो देख इसका परपेंडिकुलर बड़ा है और इसका परपेंडिकुलर छोटा हो गया है ना, तो यहां पे भी सेम ही होगा. इसका परपेंडिकुलर ये इतना बड़ा है, इसका परपेंडिकुलर ये इतना छोटा है. तो ये देख के भी एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन पता चलता है कि नहीं चलता है कि यहां से लाइट आके ऐसे बेंड हुआ है, कितना नजदीक गया है, यहां से लाइट आके कितना नजदीक गया है. यहां पे ज्यादा नजदीक इसलिए गया है कि ज्यादा दूर से आया भी नहीं. यहां पे थोड़ा कम नजदीक इसलिए गया है क्योंकि वो ज्यादा दूर से आया था. यानी द रेशियो रिमेन्स द सेम. आया बात समझ में? द रेशियो रिमेन्स द सेम, यानी द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग रिमेन्स द सेम. कि कितना बेंडिंग होगा, बेंडिंग तो स्पीड घटने की वजह से हो रहा है ना, वो रिमेन्स द सेम. क्लियर कर पाया? मैंने जो पीछे बोला था वो भी क्लियर हुआ. आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. अब देख, साइन आई बाई साइन आर को अगर गिवन पेयर ऑफ मीडिया है तो ऐसे मैंने लिया, ये आई है, ये आर है, तो साइन आई बाई साइन आर को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बता सकता हूं. साइन आई बाई साइन आर को मैं क्या बता सकता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ठीक है. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ the amount of refraction that occurs. Refractive index is the measure of the amount of refraction that occurs in a given pair of media. Refractive index is the amount of refraction that occurs in a given pair of media. एक given pair of media है तो the amount of refraction that occurs in a given pair of media is known as refractive index, which is sin I by sin R. So अगर फर्स्ट लॉ में ये बोलता है कि the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant quantity. अगर ये बोल रहा है the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant entity, which is also said that it is a refractive index, and refractive index is constant for a given pair of media. Yes or no? So the amount of what do you say? The amount of refraction occurs in a given pair of media is refractive index. ये हमें वही बताता है, and hence it is constant. So refractive index is also constant for a given pair of media. Is this clear to you? So you understood what is RI or refractive index? Did you understand this? Does refractive index have any unit? No, because it is a ratio. साइन का ही कोई यूनिट नहीं होता है. साइन इज ऑल्सो इट सेल्फ अ रेशियो. पता है ना ये चीज? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया? श्योर? अच्छा, ओके, वेरी गुड. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब देख, बात ये है कि सोच एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है. ठीक है. सोच कि ग्लास है और एयर है. ठीक है. अब क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस और नो? तो दिस इज आई, दिस इज आर. तेरे को क्या लगता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डोंट यू थिंक that refractive index will be less than 1 always in this case? denser to rarer जब लाइट जाएगा, क्योंकि R is greater than I, or we can say I is smaller than R, because when it is going from denser to rarer medium it will bend away from the normal, so R will become greater, I will be smaller, so sin I will be smaller than sin R. Yes or no? So sin I by sin R will be smaller than 1. इसको नीचे लाया मैं. So sin I by sin R is refractive index is smaller than 1.
तो इसका मतलब जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगा तो उसका जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापोगे वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये सर नो, हमेशा लेस देन 1 ही होगा। एंड अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा है तो हमेशा ही वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, यानी हमेशा ही उसका आई जो है आर से ग्रेटर होगा, यानी साइन आई साइन आर से ग्रेटर होगा, यानी कि साइन आई बाई साइन आर 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होगा फॉर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यानी ये हमेशा ही 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा, 1 से ज्यादा है, और ये हमेशा ही 1 से कम आएगा। और ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब एक मीडियम से डिक्रीज हो रहा है, जब एक मीडियम से पर्टिकुलर मीडियम में जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? श्योर? ठीक है। देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरीके का होता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरीके का होता है। एक हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं है, जब 2 पर्टिकुलर गिवन मीडिया को तू कंपेयर करेगा, सपोज ग्लास और ऑयल को कंपेयर कर रहा है, ग्लास और ऑयल को, सपोज एयर और वाटर को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इसमें अवे फ्रॉम द ऑयल को ऊपर रख, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल सोच बेंड हुआ, और एयर और वाटर को रख, इसमें सच टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमेशा मैं ऐसे लिखता हूं। देख, पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझा देता हूं, हाँ, फिर मैं एब्सोल्यूट में आऊंगा। मैंने तुम लोगों को अभी तक बहुत आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाया है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 मीडिया ले ले, एक रेयरर मीडिया ले, एक डेंसर मीडिया ले, और ऐसे ये आई है, ये आर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। लेकिन इसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, लेकिन किसका, गिवन पेयर ऑफ मीडिया बताने से नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम to the rarer medium. In this case, if this is suppose medium A, if this is suppose medium A B, we say it is refractive index of B with respect to refractive index of A. Are you getting my point? In the same way, suppose there is another where it is medium K and medium Z. So I say that suppose it is bending away from the normal, whatever it is, I, suppose this is I, suppose this is R, so we say refractive index of medium Z with respect to medium K is equals to sin I by sin R. हमेशा याद रखना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जिसमें लाइट घुस रहा है, चाहे वो अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं। Are you getting my point? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं जिसका, मैं क्या बोलते हैं उसको, उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं जिसमें लाइट घुस रहा है। मैं कभी उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालता हूं जिससे लाइट घुस रहा है। मतलब एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया में 2 मीडिया है, एक में लाइट घुस रहा है और एक से लाइट घुस रहा है। जिससे लाइट घुस रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट घुस रहा है। We take out the refractive index of that medium in which light is entering with respect to that medium from which light is entering. Is this clear to you? Is this understood or not understood? Clear? जैसे कि थोड़ी देर पहले तुम लोग सीखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज ऑलवेज greater than 1 and refractive index of rarer medium with respect to denser medium is always less than equals to 1. अभी तो सीखा, क्योंकि अगर ये यही देखना, यहाँ पे लिख देना, ये क्या है,
ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, राइट और रॉन्ग? ये सब मिटा। तो इस केस में देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम इट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो ये आर छोटा है, जब आर छोटा हो जाता है तो ऐसे सोच, जब आर छोटा हो जाता है तो आर छोटा है तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो काटने से 1 से ज़्यादा आएगा, सो इट इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर लिखा है दूसरा किसी मीडियम का, तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, काटने से लेस देन 1 आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एब्सोल्युटली क्लियर? इज देयर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यू अंडरस्टूड दिस? हाँ, ये अगर तू अगर बोलेगा सर ये नहीं समझ में आया कि न्यूमिनेटर बड़ा छोटा, तो हिसाब करके देख, 5/2 लिख और 2/7 लिख, ठीक है? इसमें क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 1 आएगा। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, हमेशा ही लेस देन 1 आएगा। डिवाइड करके देख लेना। तो इसीलिए मैंने वहां पे बताया है उस वजह से। इज दिस क्लियर टू यू? आई बात समझ में? पूरा दिमाग में घुस गया होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन वी टेक आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन पर्टिकुलर मीडिया with respect to another particular media, and we always take out refractive index of one particular media with respect to another particular media. We don't do it in such a way that we take out the refractive index of anyone. We always take out the refractive index of one particular media with respect to another particular media. Is this clear to you? Is this not clear to you? Yes, sir. Is this understood? Is this not understood? Yes, sir. Are you sure? I mean sure? हाँ? मजा आया पढ़ के कि दिक्कत लग रहा है? बताओ, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो मुझे बोल सकते हो कि सर अच्छे से समझ में नहीं आया और एक बार बता दीजिए ये वो। क्या पूछना है सर? वीडियो बना रहे हैं, बाद में देख लेंगे। यहाँ पे पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुछ पूछना नहीं है? गुड। तो देख, एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं। मैं अभी क्या पढ़ा रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरीके का होता है। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और एक होता है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव में तो लोग सीख ही गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन पर्टिकुलर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पर्टिकुलर मीडियम लिखा जाता है। तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर कोई साइन आई बाई साइन आर लिखेगा, कोई अगर तेरे को डायग्राम नहीं दिया, कोई कुत्ता है तेरे को डायग्राम नहीं दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोल दिया मीडियम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ग्लास, कोई बोल दिया ऐसे, तो वो लिख दिया कि साइन आई बाई साइन आर, ऐसे लिख दिया। तो तू क्या समझेगा कि आर कहां पे है? आर डेफिनेटली डायमंड में है। आई कहां पे है? आई डेफिनेटली ग्लास में है। ये चीज याद रखना, कभी गलती नहीं होगा लिखने में। तो इससे अगर ड्रॉ भी करना है तो देख, डायमंड ग्लास से थोड़ा ज्यादा ही डेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायमंड क्या होता है? ग्लास से थोड़ा ज्यादा डेंस होता है। ऐसा आपको कैसे पता है? हाँ, डायमंड डेंसर, ये वो तो फॉर्मूला देख के नहीं पता चलेगा ना। वो मुझे सिर्फ इतना पता है कि आर डायमंड में है, आई ग्लास में है। वैसे तो अगर मैं लिखूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फिर भी तो साइन आई बाई साइन आर ही लिखूंगा ना। यहां पे पता है कि आर ग्लास में है और आई एयर में है, और नहीं, उल्टा लिखना चाहता हूं, सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मुझे पता है कि आर एयर में है और आई ग्लास में है। पता है कि नहीं? ये पता है मेरे को, ये तो पता है, इतना श्योर हूं। अब मेरे को नॉलेज से ये पता है, तुम लोगों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, अगर मन लगा के पढ़ोगे तो डायमंड थोड़ा सा ज्यादा ही डेंस होता है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ऐसे ड्रॉ करो तो आर डायमंड में होगा और आई ग्लास में होगा। इस डायग्राम से ग्लास ज्यादा डेंस है, एयर रेयरर होता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये आई है और ये आर है। अब इतना भी पता है कि इसमें ये ग्रेटर देन 1 आएगा, इसमें ये लेस देन 1 आएगा, ये भी पता है। पता है कि नहीं पता है? ये भी पता है कि इसमें स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्पीड डिक्रीज हो रहा है। सारा चीज मेरे को पता है, इतना पता है, बहुत पता है बे। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, दूसरा चीज है, अच्छा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीख गया मैं। दूसरा चीज है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज नथिंग but refractive index of any medium
विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सर मतलब कुछ नहीं, कोई भी मीडियम में वैक्यूम से लाइट आते वक्त, कोई भी मीडियम में वैक्यूम से लाइट आते वक्त वो दूसरा मीडियम, चाहे वो ग्लास हो, ऊपर हमेशा वैक्यूम रहेगा, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, कोई भी पर्टिकुलर मीडियम में वैक्यूम से जब लाइट आता है तब हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड होगा। क्यों बोल तो? बिकॉज वैक्यूम इज द लीस्ट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, उससे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस सब कोई होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का तो कौन सा होता है? ऑप्टिकली रेयरर, मोस्ट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज वैक्यूम एंड एयर इज ऑप्टिकली डेंसर। यस और नो? एयर इज व्हाट? ऑप्टिकली डेंसर। तो इसका मतलब क्या है? एयर भी होगा, फिर ग्लास भी होगा, फिर डायमंड भी होगा, फिर वाटर भी होगा। चल 4 एग्जांपल्स लेते हैं। हम लोग क्या सीखा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये सन, मैं वैक्यूम और ग्लास को रख रहा हूं, मैं वैक्यूम और डायमंड को रख रहा हूं, और मैं वैक्यूम और ऑयल को रख रहा हूं, और मैं वैक्यूम और एयर को रख रहा हूं। देख, वैक्यूम से आया, ग्लास के लिए इतना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, वैक्यूम से आया, डायमंड के लिए इतना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, वैक्यूम से आया, सेम एंगल में गिर रहा है, ये आई सेम एंगल में गिर रहा है, ऑयल के लिए इतना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, वैक्यूम से आया, एयर के लिए बहुत ही थोड़ा बेंड किया, वे उतना बेंड नहीं, दिखने में लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही कम बेंड किया। इज दिस, लेकिन बेंड किया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है। इज दिस अंडरस्टूड? तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो लिखते ही नहीं है, छोड़ो वैक्यूम को हटाओ, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ air. So refractive index of glass will be something, definitely it will be less than 1, definitely it will be also less than 1, definitely all absolute refractive index will be less than 1. Why? Because vacuum से हमेशा किसी भी मीडियम में घुसेगा तो वो towards the normal ही बेंड करेगा और कभी बेंड ही नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? वो क्या होगा? towards the normal ही बेंड करेगा और कभी बेंड ही नहीं करेगा। क्लियर हुआ बात? आंख बंद कर। मजा आया? अंडरस्टूड और नॉट? पूरा दिमाग में घुसा ये चीज, जितना भी बोला मैंने ये वीडियो में? ये वीडियो को ऐसे ही मैथमेटिकल रहने दो, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों एक कांस्टेंट क्वांटिटी है वो समझ में आ गया। यही सारी चीज तो पढ़ा है ना इस वीडियो में। अब सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक दूसरा डेफिनेशन। सर दूसरा डेफिनेशन भी है? हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं।